Daffodil is there, lotus is there, rose has come. Sunflower section yet to join. Yes, module 2, beta. First of all, there are MCQs. Okay, and MCQ may, these are the first few questions are such which are based on your general knowledge about this chapter. Okay, there is not any particular formula. You are writing this all according to the knowledge about the large numbers, whatever you know about that. Okay, first question is 125 can be written as module 2 MCQ. Please write down today's date. Few questions are to be solved in one line or so in MCQ. ठीक है, आप उसको solve करते जाना साथ साथ में and keep writing the marking the answers also in the module. Right? First question is 125 can be written as 125 can be written as. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? There are few options out of these four which is appropriate. Think of it. 125 can be written as, I told you in the previous class, in 7th class, what new you are learning. Okay, you know already few things, but few things you are learning new. What is that? Is you can write few numbers in the fraction form. For example, 50, you can write it as 100 by 2. 50 is the half of 100. Everybody knows 25 is the 1/4 of 100. You know it, right? And 125 also I told you. What was that? What was that? Very good. So many hands I can see. It means you remember it. Is it B option? B option. Wonderful. You wrote it is 1000 by 8. Please remember such things. अगर ये आपको अभी ये चीजें बार बार यूज करोगे ना बेटा, it means you are saving your time in calculation. One thing more, you are not just learning it in the fraction form. You are learning this also, that 50 into 2 is 100. Here you are learning 25 into 4 is 100. Here you are learning 125 into 8 is 1000. These are the shortcut methods. You are using it. अगर multiplication की जरूरत है, you apply this. If you are applying in shortcut method, you can do in division method also, right? Okay. Sulfur section, beta. Yeah, take your places, beta, quickly. So this is first question MCQ. It is B option, 1000 by 8. B option. Right? Yeah. Second question is 30,000 dash 3 lakhs. You have to tell the sign. Which sign is matching? You know it quickly. Everybody write the answer and match it from here. It is 30,000. Okay, you write in the form of zeros so that you can come to know which is bigger, which is smaller. And here it is 3 lakhs. 1, 2, 3, 4, 5. By writing the zeros, you have come to know very quickly which is bigger, right? So you can say this is again B option. Jaldi se haath khada kar do who know and who have already done. B option is greater, right? Very good. Third question. What is the smallest 6-digit number? Row section, beta, please sit down, children. Are you getting the module? Take it, okay. I hope everybody has got. You want to read the question in module. Third question is, what is the smallest 6-digit number? Who say this is B option? I must tell you, in B option,
It is like this 1 1 0 0 0 0 0. It is like this. Please cut this. ये थोड़ा सा 1 2 3 4 5 इसको ऐसे लिख लो. This is wrong. Write in this way. ये 1 जो है यहां से रब कर लो बेटा. आपकी जो ऑप्शंस लिखी हुई हैं उनमें से you can cut this 1 because you know when we write the smallest 6-digit number we start from 1 and rest of the all zeros. तो 6-digit में क्या होगा? After 1 there will be 5 zeros and you will get it as 6-digit number, which is your B option. Have you corrected all of you? यहाँ by mistake there are 2 1s are written. Please rub 1, उसको cut कर दो and you can mark this option. Fourth question. How many times must 1000 button be pressed to reach 1 lakh? How many times? Times means how many times 1000 be done to make it 1 lakh? 1, 2, 3, 4, 5. This is the way to think. Why I am writing on the board? Why I am writing in number form? Because this is the way to think. Sometimes you will get a question in crore, sometimes in millions, sometimes in lakhs, 10 lakhs, something like that, billion maybe. So how will you recognize? How will you make your corrections, your question correctly without any mistake by writing the zeros? Okay, you can know very well कि 1000 में how many thousands are required to make it 1 lakh. B option, raise your hand. Who know B option? Row section, very good. Lotus, I want to see your hands. You are thinking, I know, you know it already. We have done it already. This is our B option, that is 100. Fifth question, what is the nearest crore? Nearest crore of 672,85183. Such a big number. पहले तो number note down कर लो यहाँ पे. It is 67285. You know, by comma you come to know this is an Indian system. ये आपको पता चल रहा है, ठीक है? Nearest crore. Nearest crore. Crore में how many zeros are there? Places are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसका मतलब आपको ये क्लू मिल रहा है कि ये 6 crore something है यहाँ पे नंबर. ठीक है, आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है, it is 6 crore something. तो you are doing nearest crore. Nearest crore के लिए क्या देखोगे? Lotus section, who knows? जल्दी से आ जाओ आगे. Shall I call the name? Lotus, Prabdeep Singh. Please come, beta. Can you tell me what is the nearest number out to 6 crore something? अब यहाँ पे नंबर देख के रीड करना कि आपको क्या लगता है किसके क्लोज होना चाहिए. राउंड ऑफ, जो आपने 6th क्लास में राउंड ऑफ पढ़े, इट इज दैट ओनली. डू यू नो बेटा? माइक ऑन करके बताओ. डू यू नो? दोबारा बोलो बेटे. डी ऑप्शन. वंडरफुल. हु से डी ऑप्शन? हु अग्रीड? Raise your hand who agree that this is D option. Wonderful. Thank you, beta. Please sit down. Very good. This is D option, which is saying it is closer to 7 crore because यहाँ पे जो 7 है that is bigger than 5. आप लिख सकते हो hint के लिए. This is your hint. You know कि 7 crore के बाद जो next number था that was bigger than 5. That's why we are converting 6 into 7. अगर यहाँ पे 7 के बदले में 4 होता तो it had gone down. अभी ये 5 से bigger है, so that's why we are taking the next number, that is 7 crore. It is D option. Very good, beta. चलो come to assertion reason. Assertion reasons. Again, for your general knowledge, you have done the whole chapter. We have already done the classes. These things are already known to you. Okay, you have to apply your knowledge and do these questions. You consider it as your test only, you know, because you know it. First is estimation facilitates simpler calculations. Estimation facilitates simpler calculation. अभी अभी आपने बताया कि 6 करोड़ समथिंग जो था आपके पास नंबर, आपने उसको 7 करोड़ बोल दिया. ठीक है, करोड़ बोल दिया. अब 7 करोड़ आपने बोल दिया
तो आर यू फाइंडिंग कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो रही है? इज इट सो? इज इट ट्रू? रेज योर हैंड। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने ये नियरेस्ट वैल्यू, राउंड ऑफ वैल्यू सीखी है. देयर इज नो अदर पर्पस. ओके, यस, दिस इज ट्रू. Assertion is true. Question number 6. Assertion is true. Reason, they are saying estimation uses the exact value of the numbers. Is it exact value also? अगर हम इसको करते हैं 52 को मैंने बोल दिया कि इट इज नियरेस्ट टू 6 समथिंग, तो क्या ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है? नो, इट इज नॉट द एग्जैक्ट. जिनको लगता है ट्रू होगा, रेज योर हैंड. दिस इज फॉल्स, राइट? सो वी हैव सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7. यू नो एस्टिमेशन जो सीखी है आपने, एस्टिमेशन मतलब जो नियरेस्ट नंबर सीखा है या फिर जो राउंड ऑफ नंबर सीखे हैं, इट मेक्स आवर कैलकुलेशन इजी बट नॉट एग्जैक्टली. 7th question is assertion multiplying by 50 is the same as multiplying by 100 and dividing by 2. सोच के देखो जरा, एग्जांपल लेके देखो. अभी अभी आपने बोला था कि हम 25 को, या फिर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, 25 को आप कर सकते हो 100/4. अभी अभी आपने बताया था मेरे को. या फिर 50 को आप बोल सकते हो कि 100/2 है. ठीक है? They are saying multiplying by 50 is the same as multiplying by 100/2. Is it same कि मैं किसी नंबर को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर उसको 100/2 से कर दूं? बात एक ही है क्या? क्या दोनों सेम ही आंसर आएंगे? इफ यस, रेज योर हैंड. किसी भी नंबर को मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर उसको 100/2 से मल्टीप्लाई कर दें, इज इट सेम? यस, वेरी गुड, हैंड्स डाउन. एनी चाइल्ड हु इज डाउट? तभी आपको मैंने दोनों मेथड करवाए थे. ठीक है, व्हेन वी डिड दीज क्वेश्चंस तो आपको हमने दोनों मेथड करवाए थे कि अगर आप इसको 25 को कर रहे हो, 100 से डिवाइड कर रहे हो, या फिर 100 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास क्या है? 50 आएगा. तो 25 को 100 से 100/2 करो या फिर 25 को 50 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा. यू नो इट. नाउ यू हैव कम टू नो 2 मेथड्स. इफ यू आर फीलिंग आपको एग्जाम में ये याद आता है तो ऐसे कर लो, ऐसे याद आ रहा है तो ऐसे कर लो. यू कैन अप्लाई एनी मेथड. सो दिस इज ट्रू. रीजन, मल्टीप्लाइंग बाय 100 increases the value 100 times. अभी हमने हाफ सेंटेंस पढ़ा है. Till here it is fine. Multiplying by 100 means increases the value 100 times. यहां तक बता दो, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 100 इज मतलब है कि आप उसको 100 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो. दिस इज फाइन टिल हियर? यस, यू नो इट. एंड डिवाइडिंग बाय 2 हाफ्स इट. अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें, 25 100/2 कर दें, तो इसको वो हाफ कर रहा है इसको. इज इट ट्रू? रिजल्टिंग इन मल्टीप्लाइंग बाय 50. ये 7th which section has joined now? Pansy section. Oh, you are late in joining. Just a minute. बेटी राइट डाउन, इसका एग्जांपल लिखो. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोचने वाली. आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7th क्वेश्चन में असर्शन में आपने बोला कि ये ट्रू है. रीजन के लिए प्लीज इसका एक एग्जांपल लिखो. राइट डाउन एग्जांपल. पेंजी सेक्शन बेटा, you are late in joining. It is okay, you have done, yeah, we have just finished MCQ. These are simple, you can do at home also. ठीक है, मैं दोबारा से एक बार आंसर बता दूंगी इसके. And assertion reason we are doing. Come to assertion reason 7th. बेटी 7th क्वेश्चन का जो रीजन है, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 100 इंक्रीजेस द वैल्यू. ठीक है, एग्जांपल लिखो इसको. 8 को 100 से, छोटा सा एग्जांपल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट 800. 100 टाइम्स हो गया.
अगर 800 को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 400, राइट? तो अगर हम 8 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तब भी 400 आएगा. प्लीज राइट डाउन दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तब भी उसका 50 आ रहा है, 50% यू कैन से हाफ आ रहा है उसका. जब हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो भी उसका हाफ आ रहा है. ठीक है, तो क्या ये ट्रू होगा? रीजन रेशो हैंड, जिनको लगता है ट्रू होगा. रीजन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू लग रहा है जिनको. आई एम एक्सप्लेनिंग वंस मोर, I'm explaining once more. Listen to me carefully, beta. Read the sentence once more. Multiplying by 100 increases the value 100 times. अभी अभी आपने देखा यहाँ पे increases the value 100 times. Yes. Now dividing by 2 halves it. Dividing by 2 halves it. 800 का half क्या होता है? 400. ठीक है. Resulting in multiplying by 50. Resulting in multiplying by 50. जब हमने नंबर को 50 से मल्टीप्लाई किया तब भी सेम ही आंसर आ रहा है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख के रखो. लेटर व्हेन यू विल बी डूइंग इट यू कैन अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल. व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग एट होम यू कैन टेक अदर एग्जाम्पल. 8 के अलावा कोई और एग्जाम्पल लेके देखना. इट हैपेंस लाइक दिस. कोई भी आप नंबर लोगे उसका हाफ 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 चलता जाएगा वो आगे. 8th क्वेश्चन. Multiplying a 3-digit number by 2-digit number will always result in a 5-digit number or 6-digit number. इमेजिनेशन बेटा, लार्ज नंबर का जो चैप्टर है ना, इसमें आपकी विजुअलाइजेशन चल रही है. विजुअलाइजेशन मतलब कि आपको अपना इमेजिन करना है कि ऐसा नंबर होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ऐसा नंबर होगा तो क्या नंबर आएगा, उसके कितने डिजिट्स आएंगे. ठीक है, ओपन योर माइंड टू डिस्कस द थिंग्स. अभी 8th क्वेश्चन का सी हियर ऑल ऑफ यू लर्न द मेथड्स ऑल्सो. सिर्फ क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आपको मेथड भी पता होना चाहिए, ट्रिक्स भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है तो हमने कैसे उसको सॉल्व करना है. 8th क्वेश्चन का असर्शन देखो. मल्टीप्लाइंग अ 3-digit नंबर बाय 2-digit नंबर. 3-digit नंबर मैंने ले लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया. फॉर एग्जाम्पल 3-digit नंबर है मेरे पास 100. इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2-digit नंबर से. ठीक है, विल ऑलवेज रिजल्ट इन 5-digit और 6-digit नंबर. मेरे पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 4 डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे. तो क्या लगता है ये ट्रू होगा ये असर्शन? जिनको लगता है फॉल्स होगा रेज योर हैंड. असर्शन इज फॉल्स. यस, एग्जांपल आपके सामने है. 3 डिजिट को जब हमने 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया वी आर गेटिंग 4 डिजिट नंबर, नॉट नेसेसरली कि 5 या 6 ही आएगा. ठीक है, सो दिस इज फॉल्स. प्लीज राइट डाउन दीज एग्जांपल्स. अपने मॉड्यूल में भी लिख सकते हो एग्जांपल्स. Reason, the product of 2 3-digit numbers. 2 3-digit numbers. 3-digit नंबर ले लो. रीजन में मैंने ले लिया यहाँ पे 100 into 100. प्रोडक्ट ऑफ 3-digit नंबर ले लिया हमने, राइट. विल आइदर बी 5-digit और 6-digit. देखो इसके कितने डिजिट्स आ रहे हैं. 1 2 3 4. हाउ मेनी डिजिट्स यू आर गेटिंग? 1 2 3 4 5. या तो 5 डिजिट्स आ रहे हैं या फिर 6 डिजिट आ रहे हैं. इज इट फाइन? एग्जाम्पल आपके सामने है, सो राइट डाउन ट्रू. मैथ्स के किसी भी चैप्टर में वेन एवर यू आर स्टक इन ए क्वेश्चन कि अभी मेरे को नहीं आता ये क्वेश्चन, हाउ टू थिंक ऑफ, टेक एन एग्जाम्पल. छोटा सा कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अपना प्रूव करके देखो कि हाँ ये जो बात बोल रहे हैं सेंटेंस में, जो बात बोली जा रही है, इज इट एग्जिस्टिंग और नॉट. ठीक है, अभी इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें ये नहीं है कि आपने कोई नॉलेज, आपको कोई क्वेश्चन इसके करवाए हुए. दिस इज जस्ट अ जनरल नॉलेज अबाउट द बिगर नंबर्स, हाउ द थिंग्स हैपन, जनरल नॉलेज. 3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया वी आर गेटिंग 4 डिजिट नंबर. दिस इज एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू. हो सकता है कभी कभी 5 डिजिट और 6 डिजिट भी आ जाए, बट वी हैव एन एग्जांपल कि वो फॉल्स है. यहाँ पे हमने 2 डिजिट 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग यहाँ पे 5 डिजिट नंबर. तो हम बोल रहे हैं कि यस दिस इज ट्रू, राइट. तो कौन सी ऑप्शन आएगी बेटा इसमें?
इट विल बी डी ऑप्शन. आपको पता है कि जब फॉल्स और ट्रू होता है तो इट इज डी ऑप्शन. Raise your hand who are writing these all examples. हाथ खड़े करो. वेरी गुड. यू हैव टू राइट. बाद में जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे आपके पास रीजन होना चाहिए कि हमने क्या सोच के इसको फॉल्स लिखा था, क्या सोच के इसको ट्रू लिखा था. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कम नेक्स्ट. This was 8th question. Come to 9th question. बेटे मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक. ठीक है, जहां आपने रीजन दे दिया ना, इट मीन्स यू आर करेक्ट. ओके, सो फोकस ऑन योर जनरल नॉलेज अबाउट मैथ्स. अपनी नॉलेज पे फोकस करो. लर्निंग पे मत फोकस करो कि ये पढ़ाया था उसको हमने ऐसे ही याद रखना है. मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितना भी आप चाहे बड़े होके पढ़ोगे या अभी तक जितना भी पढ़ा है आपने, दैट ऑल बेस्ड ऑन लॉजिक, दैट ऑल बेस्ड ऑन योर रीजन. ओके, कोई भी अपना एग्जाम्पल लो, रीजन देखो और बता दो कि वो ट्रू है या फॉल्स है. घबराना नहीं है. ये नहीं सोचना कि ये हमने असर्शन रीजन क्लास में नहीं किया हुआ. कभी एग्जाम में न्यू असर्शन रीजन आता है, यू टेक योर ओन एग्जाम्पल, मेक अ रफ कॉलम, यू से you judge yourself, this is true or false. Okay, 9th question. In the American system, commas are placed after every 3 digits. American system is, of course, international system. Do you know it? Who say true, raise your hand. जिनको लगता है true है. Commas are placed after 3 digits. Very good. Question number assertion. This is true. Reason. It helps in reading numbers easily. Of course, कॉमा जो आपके लगे होते हैं उससे आपको इसीलिए कॉमर्स लिखवाए हैं कि बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है. हाउ टू रीड इट, हाउ टू रीड एंड राइट, उसको सिंपल करने के लिए कि आपकी मिस्टेक ना हो, उसके लिए आपको ये सारा कुछ कॉमर्स आर रिक्वायर्ड. नाउ कम टू केस स्टडी बेटा, विच इज रिलेटेड टू योर स्टेटमेंट क्वेश्चन. केस स्टडी में मोस्टली हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन नोटबुक प्रॉपर्ली. अगर सॉल्व करना पड़े तो सॉल्व भी कर लेंगे इसको, राइट. लेट अस सी, रीड इट ऑल ऑफ यू. You seen the module I'm reading for you. Ankita was given the digits 0, 7, 3, 5, 8 and 9. Write down. नोटबुक में लिखो इसको, डिजिट्स लिखो इसके सारे, क्योंकि आपने इनके बारे में अभी सोचना है तो नंबर्स आपके सामने होने चाहिए. ओके, डिजिट्स आर 0, 7, 3, 5, 8 and 9. So many digits are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits हैं हमारे पास. Everybody write down. Ankita was given the digits, these all 6 digits उसको दिए हुए हैं. She was asked to form the smallest 7-digit number by repeating any one digit. Okay, पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चंस. Rama was given the same digits. Another girl, she was given the same digits and was asked to form the greatest 7-digit number by repeating any one digit. दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं, डिजिट सेम दिए हुए हैं लेकिन कंडीशंस दोनों की, रमा और अंकिता की, अलग अलग है. ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज द नंबर फॉर्म्ड बाय अंकिता? स्टार्ट राइटिंग इन द नोटबुक ऑल ऑफ यू. वेरी गुड. नंबर फॉर्म्ड बाय अंकिता. स्टोरी में हमें क्या कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली व्हाट इट शुड बी. अप्लाई योर नॉलेज. She was asked, Ankita was asked to form the smallest 7-digit number by repeating any one digit. Smallest भी करना है, number should be smallest. Other condition is you have to repeat the number, any one digit you have to repeat to make it smallest. Row section, Khushmeen Kaur, please help me to write this answer.
अगर किसी और बच्चे ने किए इसमें रो सेक्शन में, ही कैन कम, ही और शी कैन कम, डजंट मैटर. हाँ जी बेटी, आर यू टेलिंग? शी इज एब्सेंट. ओके, हैव यू डन बेटा? रो सेक्शन से हु इज डन? Okay, come. Yeah, पीछे से that girl can come. Rest of the children keep writing. You are checking your answer now. She is going to tell. Ma'am, answer is 3005789. 3005789. Is this the smallest? Which number you have repeated? 0. Only once. क्योंकि उन्होंने बोला था कि repeat any one digit. Okay, very good, beta. Sit down. Raise your hand who have written the same number. Same number. Very good, very good. Okay, जिनको मुश्किल लग रहा है, who are getting it difficult to write down, please raise your hand. You're doing these questions for the first time with me. Okay, if you're finding difficult, please ask your doubts. Raise your hand sincerely who don't know कि कैसे लिखना है ये number, how to think of this number. You have to write the smallest digit, the smallest number using these all digits. Please write down. जिनको नहीं पता, I am telling you, by chance कोई ऐसा बच्चा है आपके बीच में जिसको नहीं पता है, you have to, इसकी rule क्या होता है to write the smallest number? Write the digits in increasing order. Increasing order. छोटे से बड़ा. जब आप छोटे से बड़ा नंबर लिखते हो ना, the way you wrote here, ठीक है, everybody knows कि 0 से तो नंबर स्टार्ट नहीं हो सकता. It can never happen कि हमने 0 से शुरू किया नंबर. Number will always start from other than 0. तो हमने 3 से स्टार्ट किया, लेकिन 0 को हमने रिपीट किया. Why? Because हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था. 0 को हमने 2 बार लिखा. अगर 3 को 2 बार लिखेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा नंबर बन जाएगा, राइट? सो इट इज 005789. इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आपने सारे नंबर लिखे हैं और आपके पास ये स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बन गया है. वेरी गुड बेटा, दिस इज फाइन. नाउ अबाउट रमा, जिसको लिखना था ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बाय रिपीटिंग एनी 1 डिजिट. क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं, हमें लिखने 7 डिजिट नंबर, तो ऑफ कोर्स एक को रिपीट करना पड़ेगा ना, तभी तो वो 7 बनेगा. ठीक है, लिखने के बाद काउंट भी कर लिया करो. 1 2 3 4 5 6 7. 7 डिजिट हमारे पास बन चुके हैं, जो कि हमारे से पूछा गया था. ओके, राइट द नंबर फॉर्म बाय रमा. डैफोडिल सेक्शन, Paneet Kaur. Hope you have written. माइक ऑन करो बेटा. 9875300. You have to repeat 1 digit. ठीक है, और आपको ग्रेटेस्ट भी बनाना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है. तो 0 को मत रिपीट करो, 0 से तो छोटा बन जाएगा ना नंबर. आपने नंबर बिल्कुल ठीक लिखा है, बट यू आर रिपीटिंग 0, दैट इज रॉन्ग. डिजिट्स बाकी सब ठीक है. अब थिंक वंस मोर. किसको रिपीट करना चाहोगे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए? 9875300. Yeah, that I wanted to ask you. 30, yes. We are very good बेटा. We are repeating 9 ताकि हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बने, इससे बड़ा कोई और नंबर ना हो, यूजिंग these digits. तो राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. जब आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा तो आपके पास आ गया ये ग्रेटेस्ट नंबर. बड़े से छोटे नंबर्स लिखे, लेकिन हमने 9 को रिपीट किया. ओके, आपने रूल फॉलो करना है, whatever is told here. Now this question is not difficult. ठीक है, आपकी गलती क्यों हो रही है अगर किसी बच्चे ने अदर वे से लिखा है? बिकॉज you are not focusing on repeating 9 and you are not focusing on making it 7 digit number. Count it 1 2 3 4 5 6 7. किसने अपने आप लिखा था ये नंबर रिपीटिंग 9 को रिपीट करके? हाथ खड़े करो सिंसियरली. Who
took 9 as 2 times and wrote this number greatest. Very good, beta. Very good. Very good. Write down these hints also. Sometimes 7 से मे बी आपको कभी एग्जाम में 9 डिजिट लिखना आ जाता है नंबर, या फिर 10 डिजिट लिखना आ जाता है. यू शुड नो कि हमें किसको रिपीट करना है, और बड़े से छोटा लिखना है या छोटे से बड़ा लिखना है. फोकस ऑन दैट ऑल्सो. ठीक है. सी बेटा पता क्या है, अभी सी मेनी थिंग्स आर नोन टू यू, स्पेशली इन दिस चैप्टर, क्योंकि आपने 6 में भी काफी चीजें इनमें से की हुई है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, डोंट मेक मिस्टेक इन सच चैप्टर. If you are getting 10 marks question from this chapter, try to get full for 10 marks. इसमें तो marks कटने का कोई चांस नहीं होना चाहिए. ठीक है. पूरे 10 marks स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है? Concentration. Concentration is the must. Focus. Repetition. आंसर लिख लिया, उसके बाद रिपीट करो. वंस मोर उसको क्विकली चेक कर लो कि मैंने ये ठीक लिखा है कि नहीं, क्योंकि आप अपने मार्क्स को सेव करना चाहते हो. Okay, C part is write both the numbers in expanded form. Expanded form सबको लिखना आता है, आपने सीखा होगा ये low classes में. Who can write? Raise your hand. Who can do themselves? Expanded form. You have learnt it already. Very good. Please do it yourself. C part is your homework. I'm leaving for you. Expanded form में you will be writing. D question is, what would be the largest 9-digit number that can be formed using these digits? अब आपको 9 डिजिट नंबर लिखना है, वो भी लार्जेस्ट. ओके, आपको हिंट दिए, यू कैन रिपीट द डिजिट्स. जो मर्जी डिजिट अपनी नॉलेज से, अपनी कॉन्सेंट्रेशन से जिस मर्जी नंबर को आप रिपीट करो, बट वो लार्जेस्ट होना चाहिए. जल्दी से लिख दो इसको. आई एम गोइंग टू आस्क यू. वेरी गुड. लिखने के बाद काउंट भी कर लेना कि वो 9 डिजिट होने चाहिए. I hope everybody will be writing correct. Very good. Row section beta, first child, middle row, girl. Have you done beta? आ जाओ, जल्दी से आ जाओ. Very good. अभी तक सब बच्चों ने लिख लिया हुआ है, जल्दी से मैच कर लो. What is she is going to tell? 9, 9, 9, 8, 7. How many times 9 is there? 3 times या फिर 4 times? 3 times. Okay. 9, 9, 9. आगे बोलो. 8, 7, 5. 8, 7, 5, 3, 0. Is it so? यही लिखा है आपने? 1, 9 और आया. 1 9 और लगेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी ये 8 डिजिट बना है. अगर हम एक और 9 लगा देंगे, it will be 9 digit number. Very good, beta. Sit down. Raise your hand who have done this way. Same. Very good. You have repeated 9. ठीक है. गलती से अगर 3 बार लिखा है तो उसको दोबारा काउंट करके एक और 9 खुद लगा लो. ठीक है. सो क्योंकि आपने अपना आंसर खुद चेक करना है कि मैंने 9 डिजिट लिखे हैं या नहीं लिखे हैं. जब आप काउंटिंग कर रहे हो, आपको पता चल गया कि एक 9 मिसिंग है, एक और 9 बीच में ऐड कर दो. ठीक है. सी बेटा, ये केस स्टडी क्वेश्चन, इस चैप्टर का केस स्टडी क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का आपको एग्जाम में आता है. यू कैन गेट फुल 4 मार्क्स इन दैट, विच इज सच अ बिग नंबर. किसी क्वेश्चन में आपके 4 मार्क्स पूरे आ रहे हैं विदाउट एनी कटिंग, कितनी अच्छी बात है. हाँ जी बेटे, यू वांट टू टेल मी एनीथिंग? रो सेक्शन. डी पार्ट में मैम उन्होंने पूछा कि लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर. मैम वी कैन राइट इट 9 times. You can repeat the digits. Yeah, you can write that also. 999 और पूरा ही नंबर 999. Yes. You can write. Yes. क्योंकि इन्होंने कंडीशन नहीं दी हुई है कि you can repeat the digits. इसमें कुछ मेरे को मिसिंग लग रहे हैं, बट एक्चुअली जो है no, beta, listen. I want to please come here, beta. आगे आओ. 1 minute. I want to correct you here, beta. If you will be writing 9999, पूरा नंबर ही अगर आपने 99 से लिख दिया, इसका मतलब you are not using these all digits. इसका मतलब है कि बाकी सारे डिजिट नहीं यूज हो रहे हैं, सिर्फ 9 यूज हो रहा है इसमें. ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. प्लीज फोकस ऑन दिस कि ये नंबर्स को हम मिस नहीं कर सकते.
वी कैन नॉट से कि इनको इग्नोर कर दो, 999 ही बड़ा नंबर डाल दो, ठीक है। दिस इज अ हिडन थिंग ओवर हियर, क्वेश्चन में बताते नहीं है ये, बट दिस इज रॉन्ग व्हेन यू आर नॉट राइटिंग दीज ऑल डिजिट्स। आपको सारे के सारे डिजिट यूज करने हैं व्हेन एवर यू आर राइटिंग स्मॉल और लार्ज नंबर। प्लीज फोकस ऑन दैट। इट कांट बी कि बाकी नंबर को छोड़ के हमने 999 से अपना आंसर कर लिया, ठीक है बेटा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। हियर वी हैव यूज्ड ऑल द डिजिट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हमने 9 को रिपीट किया ताकि हमारे पास एक लार्जेस्ट नंबर बन जाए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। You have to write properly. These are 2 marks questions because statement questions are ये, ठीक है। Your time is also going to up, but we will be finishing it. If a single sheet of paper weighs 5 gram, single sheet of paper, आपके पास एक single sheet है, ठीक है, single sheet of paper, एक simple paper है आपके पास, उसकी अगर आपको weight दिया हुआ है 5 grams, could you lift 1 lakh sheets of paper together at the same time? One paper, weight of one paper. Write down the question. Question number 1. Write down weight of one sheet is equal to 5 gram. Otherwise, this is oral question, you know, right? But this is statement question. So you have to write few small statements, right? So what you are going to do? They are asking, could you lift 1 lakh sheets? 1 lakh. तो weight of 1 lakh sheets कितनी होगी? 1 sheet is weighing 5 gram. So 1 lakh will be 5 into 1 lakh grams. Okay. So what is that? 1 lakh, 5 into 1 lakh. It is 1, 2, 3, 4, 5. You are writing in proper this form. इसका मतलब, you know, in 1 kg is equal to 1000 gram. You know it. ठीक है? 1 kg is equal to 1000 gram. So what it will be? It will be 500 kg. Can you lift 500 kg together? Who say no? Raise your hand. Answer, you have to tell in yes or no. Answer will be no. 500 kg. No, not possible. Final answer is no, but you have to write these all statements because this is statement question. Story sum होते हैं, उनमें आपको छोटी छोटी statement लिखनी होती है to score the marks. Okay. I'm telling you the answer of second and third question. Please try at home. Second question is, find out how many coins should be stacked together to match the height of the Statue of Unity. Statue of Unity की height आपको दी हुई है 180 meters. Right? I'm telling you the answers of second and third. Please do at home. Then your science class is going to start. Second question is, you have write down the answer, beta. Put commas also. This will be your final answer. Choti statement question hai, you can do at home. And question number 3, again you can write the answer. Here also answer is no. Okay, try these at home. If you don't get it, you can ask me next time. Okay, raise your hand who will be trying it by writing. हाथ खड़े करो. Very good. All the best, everyone. You can match these all answers. Okay. Chalo, see you next time. Bye bye.